Ji, Assalamu alaikum once again, everyone, and a very warm welcome to all of you for joining us today. I'm very glad to see great number of audience joined us for our today's webinar with the title of Investment Opportunities for Overseas Pakistani in a Research in Pakistan. So let us begin our program with the Tilawat Kalam-e-Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah ji. I am delighted to welcome all of you once again. The aim of webinar is to apprise the overseas community about current opportunities in Pakistan in terms of Islamic investments. Here, I would also like to thank our overseas Pakistani community for their continued support in terms of remittances. Last I saw the numbers in last 10 months, around $34 billion have been remitted from in Pakistan, and I could see easily, inshallah, in next 2 months we will go to around $42 billion. Generally, we see that overseas Pakistanis supporting their families and funded the education of their kids. But in terms of investment and wealth creation in Pakistan, they are missing opportunities. So going forward in this webinar, inshallah, we will listen the valuable information from our two respected speakers. So here I would like to introduce the speaker of our today's webinar, Mr. Ehsan Ashraf Saab. He is the president of Pakistan Banking and Finance Professional in Kuwait. In addition, he is also the assistant vice president of AFH Capital, KFH Capital in Kuwait, with specializing in investment, finance, and operations also. The next speaker is Imtiaz Gadar Saab. He is the chief executive officer of Al Mizan Investment. And Al Mizan Investment, the largest fund manager of Pakistan, managing around $2.5 billion investments in Pakistan. He has an experience of more than 2 decades in investment and financial institution. Last, he was with the leading brokerage house. उससे पहले he was also the part of the leading Pakistani bank. He started his career from this Al Mizan Investment, and before and after that, he also served in the international financial institution. So going forward and to move forward, I would like to invite Mr. Ehsan Ashraf to share his thoughts. So inshallah, we will start our program. Ji Ehsan bhai, over to you. Ji, thank you. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, and welcome to our webinar. First of all, I would like to thank Al Mizan team, Talha bhai, Imtiaz bhai, and your team. Whenever we have contacted you for our, such webinar, you have always been there, and very promptly you act on our request. Thank you so much. और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है अपने वक्त में से जो है वो थोड़ा सा टाइम हमें दिया और वेबिनार ज्वाइन किया है। जैसे आपने बताया है तलहा भाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में बस एक ही चीज़ आती है, वो है रियल एस्टेट। ये हम लास्ट वेबिनार में भी हमने इसको जो है वो इसी तरह से देखा था कि जब भी हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट की बात करते हैं और इसके अलावा कोई और चीज़ हमारे उसमें नहीं, रडार में नहीं आती। दिस इज आई थिंक ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, वी लैक इन दैट फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली। और दूसरी तरफ जो है वो स्पेशली जब मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट में जो लोग हैं वो दे यूजुअली वांट टू बिल्ड देयर और देयर वेल्थ इन पाकिस्तान। तो फिर अगेन जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो है वो किसी का ध्यान नहीं जाता या किसी अवेयरनेस जो है वो नहीं है। तो इस दफ़ा हमने जो है वो अगेन आपको जो है वो जहमत दी है ताकि आप जो है अल मीज़ान के प्लेटफॉर्म से हमें जो है वो उसमें गाइड करें
कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन से फंड्स हैं, अल मिज़ान के थ्रू हम किन इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी वेल्थ को और अपनी सेविंग्स को वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं. तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. So I will, with this note, hand over to you, Mr. Talha. तो over to you, Talha bhai and Imtiaz bhai. म्यूट पे है। तलहा, यू आर ऑन म्यूट। जी सॉरी। थैंक यू एहसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली आपकी कम्युनिटी का जो कुवैत को आप की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नंबर्स हैं पाकिस्तान के रेमिटेंस के, इसमें कुवैत का भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं इम्तियाज साहब को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के, उनको मैं इन्वाइट करूंगा टू शेयर हिज थॉट्स। तो इम्तियाज साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Dala, or more than that, thank you, Hassan Bhai, for once again giving Al Mizan the opportunity to come and connect to your community. You've always been very kind, and it's been now this is the second year running that we are collaborating over this. So let's hope this is a trend that we can continue in the future as well. But just like we did last time, एक थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, some of the prepared comments on how things have changed since the last time we were connected. Recent days में क्या हो रहा है, आगे क्या opportunities नजर आ रही हैं। थोड़ा सा फिर मैं हैंड ओवर करूंगा तला को, तो जस्ट ब्रीफ योर हाउ द आरडीए हैज इवॉल्व्ड सिंस वी लास्ट स्पोक, और उसमें क्या नई चेंजेस आई हैं, और देन ऑब्वियसली वी कैन ओपन अप फॉर क्यूएनए. So in the interest of time, I'll just start off with the presentation. Tala, can you just confirm to me once you can see the screen? ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है इम्तियाज साहब, इसको स्लाइड शो पे आप कर लें प्लीज। थैंक यू। ठीक है जी, चलें। तो I'll just start off with this. अगेन अ ब्रीफ रिकैप, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि पिछले 12 महीने में हुआ क्या है। तो सबसे बड़ी चीज जो हमने देखी है इन द लास्ट 12 मंथ्स, और मे बी इट्स ट्रू फॉर द लास्ट 36 मंथ्स, के पाकिस्तान में हिस्टोरिकली देयर हैव बीन टू ऑप्शंस विद द इकोनॉमिक मैनेजर्स के इकोनॉमी के साथ करना क्या है, किस तरह मैनेज करनी है। एक हमारा वो फेज आता है जहां हम ग्रोथ को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, 6-7% की जीडीपी ग्रोथ को चेस कर रहे होते हैं। उसमें जो है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हमारी इकोनॉमी की बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। फिर एक इन्फ्लेशन का साइकिल चलता है, एक डिवैल्यूएशन का साइकिल चलता है, और उसको मैनेज करने में फिर 1-2 साल लग जाते हैं, और उसके बाद आता है एक स्टेबिलिटी वाला ग्रोथ। तो पिछले 3 साल में आई थिंक दैट इफ यू सी ऑल द नंबर्स, सो इट्स वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स ने अपनी चॉइस स्टेबिलिटी की तरफ ही की हुई है। तो आपने देखा है कि ग्रोथ जो है 3% के मार्क के आसपास है, क्योंकि 3% जो हमारी कैपेसिटी या हमारी जो हमारी इकोनॉमी के अंदर लिमिटेशन है, उसको देखते हुए 3-4% की ग्रोथ एक ऐसी होती है कि जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी ओवरहीट नहीं होती। सो यू सीन कि इन्फ्लेशन हैज बीन इन सिंगल डिजिट। बाय पॉलिसी एक डिसीजन लिया गया कि इंटरेस्ट रेट्स को रियल इंटरेस्ट रेट्स को डीप पॉजिटिव टेरिटरी में रखना है, और उसका रिजल्ट हमारा ये निकला है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ने बहुत एक डिसेंट परफॉर्मेंस शो की है। तो एक स्टेबिलिटी की प्रेफरेंस जो है वो बड़ी क्लियरली नजर आई है। स्टेबिलिटी की प्रेफरेंस को ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स ने भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। We've seen it in asset prices, whether it's the prices at the PSX या general asset prices in Pakistan देखें तो वहां पर आपको इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नजर आता है। इसके अलावा इसको एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से भी, कि जो हमारा 2023 का लो था, जहां पर इट लुक लाइक दैट पाकिस्तान को डिफॉल्ट एनी डे, वहां से एक बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान की क्रेडिट क्वालिटी को अपग्रेड किया है। स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जो एक लो था 2023 का, उससे हम काफी सिग्निफिकेंटली आगे आ गए हैं। और इस सबको करते हुए वी आल्सो रिमेन एंगेज विद द आईएमएफ, व्हिच इज अनदर स्टैम्प ऑफ कॉन्फिडेंस दैट पाकिस्तान हैज बीन एबल टू गेट। पॉसिबल कैसे हुआ है? ऑब्वियसली पॉलिसी डिसिप्लिन, वी कैन आर्ग्यू कि कुछ चीजें और बेहतर हो सकती थी, बट गिवन व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2-3 इयर्स, बहुत ऐसे मौके आए जहां पर मार्केट में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को भी ये लगा था कि शायद गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ चली जाएगी, बट हमने देखा कि दे स्टक टू द पॉलिसी डिसिप्लिन एंड दैट हैज वर्कड रियली वेल। एंड स्पेशली ये सारा जो रिफॉर्म्स इन पॉलिसी डिसिप्लिन का, द पोस्टर चाइल्ड हैज बीन द प्रोग्रेस ऑन प्राइवेटाइजेशन, के जहां इतनी सारी अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली पाकिस्तान ने पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया है। अगेन देयर आर अ नंबर ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस दैट आर स्टिल इन द पाइपलाइन, और जैसे जैसे उस पर प्रोग्रेस होती है, आई थिंक ये जो पॉलिसी डिसिप्लिन और पॉलिसी रिफॉर्म है, इस पे और कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा, स्पेशली वेयर वी हैव सीन के एनर्जी चेन में भी काफी सारा काम
हुआ है. Again, as I said, because of the challenges, not everything has been perfect, but definitely जो है improvement हमें बहुत सारी जगहों पे नजर आई है. And finally, the biggest change that has happened in the last 12 months, last time हम शायद मई में ही कनेक्ट हुए थे आपके साथ, उस वक्त ये चीज प्ले आउट होना शुरू हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सारी चीजें हो रही थी. बट व्हाट हैज हैपेंड पोस्ट February 28 एंड जो पाकिस्तान का एक रोल उभर के आया है, a situation where no one was willing to touch it with a pole, Pakistan has gone head first into it, come out as a very significant player in terms of mediating the whole conflict. Yes, it could all the jury is still out how this will end for Pakistan, but अब तक जो पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंस है वो बहुत क्लियरली हमें नजर आई है, and that is something that is likely to play out positively for us in the medium to long term. So in a nutshell, अगर हम macro recap की बात करें तो it can be argued that Pakistan has moved from economic survival to stabilization. लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर के एंड की तरफ ये बात होना शुरू हो गई थी पाकिस्तान में कि ठीक है, स्टेबिलिटी का फेज शायद हमने अचीव कर लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ, वेयर कैन वी गिव रिलीफ, वेयर कैन वी गिव इम्पेटस. और उसके हमने देखे थे पॉकेट्स में कुछ डिसीजन ऐसे हुए भी थे जो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, स्टेबिलिटी अपनी जगह पे, बट देयर इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, देयर इज अ नीड टू रेज इनकम्स, तो ग्रोथ की तरफ जाते हैं. बट अगेन व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, इट सीम्स लाइक कि वी हैव डिसाइडेड कि अभी सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा सा और हम उसको कंसोलिडेट करें, फिजिकल डिसिप्लिन को थोड़ा बेहतर रखें, और ग्लोबल लैंडस्केप जिस तरह से फेज पैन आउट करता है, आई थिंक वो डिटरमाइन करेगा कि पाकिस्तान कितना एग्रेसिवली अपना नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल की तरफ जाता है. सो अगर इस सारी पॉलिसी के अंदर जो एक बड़ा वाइल्ड कार्ड है, विच ऑब्वियसली इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, विच इज द नेट ऑयल इंपोर्टर, तो उसमें यही है कि ऑयल प्राइसेस का एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे आता है, बिकॉज 30% ऑफ द इम्पोर्ट बिल इज ऑयल. There is a high correlation between the oil prices and CPI, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा फूड जो इम्पैक्ट होता है, तो तकरीबन हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे CPI बास्केट का 50% है जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मूव हो जाता है ड्यू टू ऑयल प्राइसेस. हमारी इन हाउस कैलकुलेशंस बताती हैं कि every time oil increases by 10%, CPI increases by 1%, and in the last couple of months there is a 30 to 40% increase in oil prices. So obviously CPI पे उसका एक प्रेशर जरूर आएगा, और इंक्रीज USD डिमांड फॉर ऑयल पेमेंट्स की वजह से करंट अकाउंट और PKR की भी बात होती है. नेक्स्ट में आऊंगा इस चीज पे कि हमने इसको मैनेज कैसे किया है. बट अगेन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिस्टिंक्शन करना, जिसपे शायद इतनी बात नहीं होती, कि एक बड़ा क्लियर ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट के पास अवेलेबल था कि लोग अगर प्राइसेस को कंट्रोल करना था तो इसकी अवेलेबिलिटी को हम कॉम्प्रोमाइज कर देते. बट अगेन आई वुड से क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, द फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज बीन एबल टू सिक्योर दोज मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइडेड टू द पीपल इज इटसेल्फ अ बिग टास्क. Obviously that has come at a cost, क्योंकि जब आप ये अरेंज करते हैं इतने एलिवेटेड प्राइस लेवल पे, तो ऑब्वियसली वो प्राइस में तो इसको उनका इम्पैक्ट नजर आता है. बट आई थिंक इफ दे हैड गॉन फॉर द अदर ऑप्शन, जो कुछ कंट्रीज रीजन में गई हैं कि अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर दे, तो शायद प्राइसेस तो इतनी ना बढ़ती, लेकिन उसके अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं. सो अगेन टाइम विल टेल कि कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर थी. बट इस वक्त की जो स्ट्रैटेजी में हमें प्राइसेस का प्रेशर नजर आता है, उसमें ऑब्वियसली एक बहुत क्लियर इम्पैक्ट इस बात का है दैट वी एज अ कंट्री हैव आल्सो प्रायोरिटाइज अवेलेबिलिटी एट द सेम टाइम. ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन आवर जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग के, जिस तरह से हमने इसको नेविगेट किया है. जैसे बात होती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज गुजर रहा है इस वक्त LNG का, तो वो पाकिस्तान आ रहा है फ्रॉम कतर. सो ऑब्वियसली दैट शोज यू दैट अवेलेबिलिटी प्रीमियम दैट पाकिस्तान हैज बीन एबल टू अरेंज हैज वर्क वेल फॉर पाकिस्तान. बट हैविंग सेड दैट, ये इसका जो मैनेजमेंट है उसके अंदर दो तीन चीजें और गवर्नमेंट ने की हैं. एक हमने देखा है, एक स्ट्रैटेजी रही है इन द लास्ट 2-3 years where they usually try to curtail the non-essential imports, ताकि वो एसेंशियल इंपोर्ट्स को कर सके. तो आई थिंक वो थोड़ा सा हमें उसकी कहीं पे न्यूज फ्लोज में नजर आता है, कहीं वो कंसीडर किया जा रहा है. बट बाय एंड लार्ज इट्स स्टिल बीन relatively well managed. I'm sure you have all family back home and you keep hearing about the change in product prices every Friday. The results have been mixed. The government has probably still not zeroed in on कि कितना टैक्स चार्ज करना है और कितना रिलीफ देना है. They're still trying to hit the holy grail, but I think they have been able to at least absorb some of the pressure कि फिजिकल साइड को बहुत ज्यादा डीरेल ना करें. एंड अगेन आई डोंट थिंक एक अनएनविएबल पोजीशन में है गवर्नमेंट के, जहां पर उसकी दोनों चीजें बैलेंस करनी होती है. सो क्लियरली आई हैव टू से देयर हैव बीन मिक्स्ड रिजल्ट्स ऑन दिस, बट दैट इज आल्सो वन ट्रिगर दैट द गवर्नमेंट हैज यूज्ड टू मैनेज दीज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस. सप्लाई चेन की मैंने बात की कि अवेलेबिलिटी को अरेंज करना फूड की और ऑयल की, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट डज डिजर्व क्रेडिट. एंड अगेन द फैक्ट दैट वी बीन एबल टू स्टे इन द IMF प्रोग्राम एंड गेट फॉरेक्स सपोर्ट इज आल्सो हेल्पिंग अस. इसी को अगर जो अभी हम बात कर रहे थे हमारी मैक्रो स्टोरी को, सिंस लास्ट ईयर हाउ इज इट कम, अगर उसको थोड़ा सा पिक्चर्स में देखें तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आता है कि एक बड़ा फैक्टर, एंड अगेन
तला ने शुरू में बात की कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड कीप थैंकिंग दी ओवरसीज पाकिस्तानी के जो हमारा रेमिटेंसेस का नंबर है दैट हैज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ऑल द वोलेटिलिटी इन द वर्ल्ड दैट हैज हैपेंड. एक जंग हमारे मुल्क में हो गई, 2 जंगे दुनिया में हो गए, बट थैंकफुली आवर रेमिटेंसेस हैव स्टेड अबव द $3 billion मार्क. क्लोजर टू होम व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज कि जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अपने इंपोर्ट बिल को और करंट अकाउंट को मैनेज करते हैं. सो वी सीन कि जैसे प्रेशर बढ़ा है, गवर्नमेंट ने करंट अकाउंट की मैनेजमेंट को भी थोड़ा क्लोजली फॉलो करना शुरू कर दिया है. दैट इज मेड श्योर कि ग्रोथ चेस करते हुए इस टाइम पे हम इकोनॉमी को ओवरहीट ना कर दें. और ये चीज आपको फॉरेक्स रिजर्व में भी नजर आती है कि जो दुनिया में इस वक्त चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान की जो रीपेमेंट प्रेशर्स हैं, पाकिस्तान की अपनी फंडिंग सोर्सेज जो डाइवर्सिफाई हो रही हैं, ये सारी चीजों के बावजूद भी we will able to maintain our foreign exchange reserve levels, and that is something, as you see in the bottom left hand graph, reflects in the currency parity as well. कि हमारी currency despite all of these pressures has so far not depreciated, and there is, it has been able to show signs of stability. Yes, the news flow suggests कि इसके ऊपर pressure आ रहा है, but again this is more hearsay rather than what we see in the numbers, because FX reserves अभी भी काफी strong ही खड़े हैं. एक और एरिया है जहां पर आई थिंक पाकिस्तान इज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट स्पेशली फ्रॉम IMF एंड अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज इज द फिस्कल डिसिप्लिन साइड. जो प्राइमरी सरप्लस हम ने मैनेज कर लिया, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज गिवन अस सम ब्रीदिंग स्पेस ऑन द फिस्कल फ्रंट. ऑब्वियसली इस पे और काम भी चल रहा है. दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ कंसेंसस in terms of the money that goes to the provinces. Obviously, it's a sensitive political subject, so it will be important कि इसको मैनेज करते वक्त उस चीज का भी ख्याल रखा जाए. बट इफ यू आर एबल टू गेट अ ब्रेक थ्रू ऑन दैट इन अ कंसेंसस मैनर, ऑब्वियसली दैट विल ease our fiscal deficit concerns a little bit more. FBR का tax target we keep hearing is a little behind what it should be. But having said that, अगर थोड़ा सा expenses से control हो जाता है तो that should be a manageable situation. Last graph obviously is the policy rate, and as you can see, एक expectation थी कि अप्रैल में because of the higher oil prices, inflation will be higher. But at the same time, as we said about policy discipline, कि स्टेट बैंक ने फिर इंतजार नहीं किया, and they were also proactive and they said, okay, we'll also raise the interest rates to make sure that the economy does not overheat. एक डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है इंटरनल भी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस किस तरह कंट्रोल में आ जाएंगी कि अगर हम इंटरेस्ट रेट्स अपने इंक्रीज कर देंगे. वो डिबेट एक अपनी जगह पे, बट गवर्नमेंट हैज अ सर्टेन पॉलिसी टूल्स उसके डिस्पोजल पे होते हैं व्हिच दे कैन यूज टू मेक श्योर दैट द इकोनॉमी डज नॉट ओवरहीट, एंड दे हैव डिसाइडेड टू यूज दैट. तो एक इसमें जो हमने शुरू में बात की थी कि स्टेबिलिटी स्टिल सीम्स टू बी द नंबर वन टारगेट एट दिस पॉइंट. दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट जो हमने बातें की कि पिछले 3-4 साल में हुआ क्या है. हमने FY21 से नंबर्स दे दिए ताकि just for all of you, although we have all been tracking these numbers very closely, you can just see where we were in FY21, FY22 और 23 का जो लो था कि जहां पर इंटरेस्ट रेट्स भी 22% हो गए थे, इन्फ्लेशन भी was much on the higher side. उन सारी चीजों से हमें लग रहा है कि FY26 will obviously continue to show an improvement. और जैसे हमने बताया है कि FY26 में भी हमें ग्रोथ के नंबर्स को आप देखेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे, so stability still seems to be the mantra at least till the end of FY26. And we are expecting कि initial part of FY27 में भी probably आपको यही strategy follow होती हुई नजर आएगी. Just a big, large disclaimer here on this slide. This is as things stand right now. As you and all of us know, things are very, very fluid. This can all change very quickly. With one meeting here or one meeting there, one flight here, one flight there, can change a lot of things in terms of the macroeconomic outlook. But as things stand right now, पाकिस्तान का जो macroeconomic outlook लग रहा है वो यही है कि ओवर हीटिंग को बचाते हुए स्टेबिलिटी एंड मेजर्ड ग्रोथ को किस तरह चेस करना है. सो हाउ डज वन प्ले ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अ पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स पर्सपेक्टिव? वेयर डू वी स्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? उसमें ऑब्वियसली वन ऑफ द थ्री की थिंग्स फॉर स्पेशली दिस ऑडियंस कि हमने इस पे इंक्लूड जो किया है कि यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्किन इन द गेम इन पाकिस्तान. देयर इज रेमिटेंसेस की हमने बात की. कुवैत ऑब्वियसली इज आल्सो वन ऑफ द decent sized players in that. In the last few years, $800 to $900 million has continued to come into Pakistan. A lot of this is considered कि या तो ये कंजम्पशन के लिए आता है, एहसन भाई ने भी शुरू में बात की, या तो रियल एस्टेट के लिए आ जाता है. But I think it's time that we evolve that conversation. We are hearing that conversation from our friends, family, clients. They are looking at, I probably need to start parking something for my family here. It's not a substitution of the family support you give. It's a complement. It's a supplement to let me also have some things here which can help them build that future. So, instead of the money coming in here just for consumption, एक हम बड़ा विजिबल ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट के लिए भी पैसे इस तरफ आना शुरू हो गए, whether that's in the RDA, whether it's through the other channels. So that's something that is coming. जैसे हम कहते हैं कि don't just send money,
own a piece of Pakistan, play a role in building Pakistan. And obviously, जो जैसे मैं आगे बात करूंगा, the landscape is attractive enough that it's not just going to be a noble task. It's something that will also give you attractive returns, जैसे कि historically बने हैं. जैसे हम अगर इस स्लाइड को देखें, हमने equities की बात यहाँ पर की है, तो मैं I'll start with the bottom left hand graph for example, कि आप कोई भी starting point ले लें. यूजली पाकिस्तान मार्केट में एक क्रिटिसिज्म आता है कि अगर आप या किसी भी मार्केट में आते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेस क्या ले रहे हैं. हमने सारे यहाँ पर दिखा दिए, 1 year, 2 year, 3 year. टेक द स्टार्टिंग पॉइंट दैट यू फील is more reflective. The story of Pakistan equities has been pretty solid, and especially अगर आप अब मैं टॉप लेफ्ट हैंड ग्राफ पे अगर जाऊं कि डॉलर एडजस्टेड देखें तो लास्ट 2-3 years has been a phenomenal story in terms of how Pakistan has not just provided good absolute returns, they've also been very good compared to the region. रीजनल मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म किया, और ये सब करने के बाद बिकॉज 2023 का जो लो था, ये आई थिंक अभी शायद हम रियलाइज नहीं करते, बट हिस्टोरिकली थिंग्स इंशाल्लाह गेट बेटर, वी विल रियलाइज इट वाज द एब्सोल्यूट पिट्स, कि जहां पर पाकिस्तान मार्केट के वैल्यूएशन 2x और 3x मल्टीपल्स पे आ गए थे. तो इतनी रैली होने के बावजूद भी, बिकॉज माशाल्लाह पाकिस्तान कॉर्पोरेट्स की अर्निंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग है कि हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी भी लोएस्ट है रीजन में, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स. यूजुअली क्या होता है कि एक एसेट है वो बहुत परफॉर्म कर जाता है तो बाकी एसेट से महंगा हो जाता है. हम इतने लो बेस से आ रहे हैं कि ये जो 2 और 3x परफॉर्मेंस है, इससे हमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. वी शुड लुक एट हाउ डू थिंग्स स्टैंड राइट नाउ. इनफैक्ट आई कोट एन एनेक्डोट. मेरी एक फॉरेन फंड मैनेजर से बात हो रही थी, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, एंड आई आस्क्ड, मेरा उल्टा सवाल था उससे. मैंने कहा मार्केट 2-3 टाइम्स परफॉर्म कर गई है, तो अब आप लोग कैसे देखते हैं? कह रहे हमें इससे नहीं लेना देना कि कितनी परफॉर्म कर गई, हम तो स्पॉट एनालिसिस देखते हैं आज क्या है. Is it cheaper today? Is it not cheaper today? So the point being that it is still something that is offering very attractive multiples. So when you look at Pakistan as an overseas Pakistani, again, just in terms of building a safety net for your family for the future, in addition to an attractive investment opportunity. So that's the two things that you get simultaneously when you look at the Pakistan market. Obviously, Al Mizan ka webinar hai, so obviously it has to be highlighted that, you know, one of the myths that we always make sure that we burst for people. लोगों का ख्याल होता है कि यार अगर मैं इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स करूंगा तो मेरे एवेन्यूज लिमिटेड होंगे, मैं कमर्शियल बैंक्स में नहीं ले सकूंगा एक्सपोजर, मैं इंश्योरेंस में नहीं ले सकूंगा, तो मेरा रिटर्न शायद इंफीरियर होगा, या मैं उन कंपनीज में भी नहीं ले सकूंगा जो बहुत ज्यादा लेवरेज्ड हैं, तो शायद मेरा रिटर्न इंफीरियर होगा बीइंग एबल टू इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट बिकॉज ऑफ द वे पाकिस्तान मैक्रो साइकिल वर्क्स, आपके पास हर 3-4 साल में क्योंकि एक क्राइसिस आ रहा होता है, तो एक्चुअली इस्लामिक कंपनीज विच आर बाय डेफिनेशन लेस रिस्की बिकॉज दे गो फॉर लोअर लेवरेज, दे डोंट गेट इनटू स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. सो अगर आप पूरा मार्केट का भी देखेंगे, KMI 30 जब से वो लॉन्च हुआ है, उस दिन से अगर KSE 100 को मैप करें तो मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड बाय मोर देन 1% ऑन एवरेज सिंस इंसेप्शन. अब ये केगन में 1% लगता है, लेकिन ऊपर हमने एब्सोल्यूट भी दिखा दिया कि it has delivered 200% higher return by being a Sharia compliant investor in Pakistan equities rather than being a क्या कहना चाहिए indifferent investor in Pakistan. So Sharia compliance is something that has really paid off by being a Sharia compliant investor. It has not restricted your returns. If anything, it has magnified it. How do you play this? Obviously, Al Mizan and, you know, this is how the industry is कि हमने जिस तरह से इसको जो बुके ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें आपको हर तरह की एक चीज मिल जाती है, जिसमें आप अगेन क्लासिक थ्योरी में लो रिटर्न, लो रिस्क, एंड देन यू कीप गोइंग हायर, एंड एज यू गो एंड एज यू कीप पाइलिंग ऑन रिस्क, ऑब्वियसली आपका रिटर्न उसके अंदर इंक्रीज होता चला जाता है. तो वी हैव द होल बुके, इवन अल मीजान के पास भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तो उस पर और थोड़ी सी लाइट शेड कर दूंगा मैं. एंड अगेन फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव, यू आल्सो लुक्ड एट अदर एसेट क्लासेस. तो एक तो जहां पर मैंने आपको बता दिया कि कन्वेंशनल वर्सेस शरिया, वी हैव आल्सो डन आवर फ्लैगशिप इक्विटी फंड is the Mizan Islamic Fund, compared to all other asset classes that you keep hearing about in Pakistan. So it has been able to outperform all of them despite all that has gone on. तो हम जब भी इक्विटी की बात करते हैं, पिछले 2-3 साल की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं आपने जो है वो गोल्डन पीरियड ले लिया. हमने गोल्डन के साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज भी ले लिया, कि जो बुरे टाइम रहे वो भी ले लिया. उसमें भी अगर आप देखें तो इट ऑल इंक्लूडेड सिंस FY04, यानी कि 22 years की भी परफॉर्मेंस देखें, so it has outperformed the other asset classes. So Pakistan equities have had a solid case despite all the negative headlines we keep hearing, despite every crisis that we've been able to navigate. So this is something that should be considered in your investment case in Pakistan. Moving forward, REITs, real estate की हमने बात की, तो अब एक और चीज which you know I'm sure a lot of you have heard about it, but obviously पाकिस्तान में इस पे काफी काम हो रहा है. We are also working on different products that, you know, meet this criteria. Again, क्योंकि ये अभी still it's evolving, the framework is still evolving, but generally just a very good and efficient way of getting exposure to white real estate in Pakistan. एक चैलेंज हमेशा रहता है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का
white real estate और real estate दो अलग-अलग asset classes है पाकिस्तान के अंदर. So now with REITs coming up, this formal economy का जो real estate का exposure है, उसके लिए आपके पास avenues आना शुरू हो जाते हैं. इस वक्त एक classic dilemma हर बंदे के लिए, मेरे जैसे सैलरीड बंदे के लिए, आप जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, सबके लिए मसला होता है कि मैं 100 रुपए की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और मुझे उसमें 50 रुपए अपने एसेट दिखा सकता हूँ, 50 रुपए मुझे कैश इन हैंड या कुछ करके उसको मैनेज करना होता है. सो व्हेन REITs become more common, I think that will be a good avenue for you to have a listed instrument, smaller ticket sizes. कोई जरूरत नहीं है 10 करोड़ का 15 करोड़ का पूरा अपार्टमेंट लेने की या आपको एक्सपोजर लेने की. यू कैन ऑल्सो टेक एक्सपोजर थ्रू लिमिटेड टिकट साइजेस, एंड ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो गॉट टैक्स बेनिफिट्स कमिंग अप. Different kind of REITs in Pakistan are now, being opted. एक तो classic rental model है कि जहाँ पर you are only entitled to the rent. Then there's a development one where you take the developmental risk along with the builder and you become part of the upside of the property. And then there is a hybrid structure as well. So this is also something that is gaining a lot of traction. And because it is all controlled by SECP and independent trustees, तो वो उसके अंदर एक आपको एक comfort factor भी होता है. टैक्स का है, अगेन आई एम शो यू, इट्स समथिंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ. कैपिटल गेन्स का 15% है, डिविडेंड्स का 25% है. जहां मैंने रीट की बात की, आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट पाकिस्तान, व्हाइल यू आर कंसीडरिंग योर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स को जरूर देखिएगा. दे आर मोर कॉमनली कॉल्ड एज VPS इन पाकिस्तान. बट एक जो डिस्टिंक्शन है, मैं सिर्फ उस पर टच बेस करूंगा. वो ये है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, द म्यूचुअल फंड हैज टू पे आउट 90% ऑफ इट्स एनुअल अर्निंग्स एज डिविडेंड. तो उस पे आपका एक टैक्स इंसिडेंस हर साल लगता रहता है. तो जब भी डिविडेंड आएगा उसमें से एक टैक्स डिडक्ट होगा, तो आपकी एक तरह से लीकेज होती रहेगी. इफ यू इन्वेस्ट इन अ VPS एंड यू मेक श्योर दैट यू आर आल्सो फाइलिंग योर पाकिस्तान returns at the same time, so that your appropriate tax calculations are being done, only when you withdraw the money between your investment right to the end of your investment period, this money keeps growing uninterrupted. There are no dividends that are paid out. तो अगर आपको कैश की नीड नहीं है over the longer run, this could be an ideal product for you. हमने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस भी रन किए. अगर आप, if you're a young guy 35 40 and you've got time and you don't need that money, if you keep investing a certain amount for 20 years, your wealth is 30% higher at the end of this period just because of this uninterrupted compounding. So this is something जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए while you're looking at Pakistan, because इसकी हमें ऐसा लगता है कि रियलाइजेशन ओवरसीज पाकिस्तानीज में इतनी नहीं है. दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड अ प्रोडक्ट, यार ये तो पाकिस्तान की सैलरीड क्लास के लिए शायद ज्यादा रेलेवेंट है because of tax benefits, but ये जो uninterrupted compounding वाला factor है, I think this can be a very critical differentiating factor for your returns as well. Very quickly, I'll run through Al Mizan. I hope a lot of you are aware about us. We are the largest asset managers in Pakistan. Again, we take a lot of pride in the fact कि एक इकोनॉमी है जो बाय एंड लार्ज अभी भी कन्वेंशनल है. बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो सिर्फ 20-25% डिपॉजिट्स इस्लामिक हुए हैं. लेकिन इस तरह के लैंडस्केप में भी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह a Sharia compliant company is the largest asset manager for the last 5 years running. We've got our management rating here. We've, the other firsts that we've been able to achieve, but एक और चीज इसमें हम बड़ा pride लेते हैं is the fact that we cater to a very wide investor base. In Pakistan, we cater to, alhamdulillah, 575,000 investors, and that number is rapidly growing. Our investment policy, again, very important, because again, this mutual fund business is for people who do not have the time and expertise to invest yourself. So we make sure that our vision is aligned with the needs of the investors, that we take a long-term strategic view, seek to deliver sound investment returns and acceptable level of risk. Again, something that's underappreciated कि आपको consistent value creation के लिए you need to have acceptable levels of risk. And again, by DNA, we continue to advocate that whatever you do, the Sharia compliance angle should definitely be at the forefront of it. In terms of the returns, how's the track record been? Again, वही मैंने आपको बात की, हमने long term इसीलिए दिखाया था because 3 साल का track record तो माशाल्लाह is like mouth watering for anyone who looks at it. But even if you look at it from a longer term perspective, from a USD perspective, जो पिछली slides में हमने दिखाया, all the returns kind of speak for themselves. So this is just a track record of all our different funds. So I'll not go into them one by one. You can later we can share the copy with you and you can look at it there. How do we go about it? Obviously, once we know the specific financial goals of the investor, their time duration and age is obviously very important, and risk. थोड़ा सा risk पे सिर्फ time भी spend करूंगा कि हमारा काम ये होता है कि आपकी stated risk appetite और आपकी implied risk appetite को समझना. I think that's where we bring in the value, because anyone you ask, especially अगर आपके अंदर पाकिस्तानी खून है, तो आप यही कहेंगे मेरा risk appetite बहुत high है. But then we have our ways and means to determine whether that risk appetite that you're saying and you actually depict या आपकी condition उसको allow करती है या नहीं करती. So once we've had a broad agreement of what your risk appetite is, that's where we decide to bring in a bouquet of funds that can meet your needs and capital. And once you're on board in terms of value-added services, digital
is the day and age that we are living in. So everything has to be at your fingertips. So all the latest kind of services are available that makes you tracking and adjusting or adding or taking out from your portfolio makes it very, very simple. So now I'll take a break here and I'll now hand it over to Tala so that Tala can just run you through the RDA piece. जी थैंक यू इम्तियाज साहब, वेरी एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड. मुझे अगर आई जस्ट हैव टू समराइज योर प्रेजेंटेशन इन वन सेंटेंस, तो उसमें जो क्रक्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की एक स्लाइड के ऊपर, डोंट जस्ट सेंड मनी, ओन अ पीस ऑफ इट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी. और उसके बाद जो आपने ऑप्शंस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और स्पेशली इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, जो शेयर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए. अच्छा, रिगार्डिंग जी ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, रोशन डिजिटल अकाउंट का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को दे दूं. ये बड़ी एक्सीलेंट प्रोडक्ट है फ्रॉम स्टेट बैंक, ये इनिशिएटिव है, और मैं तो कहूँगा इसका सक्सेस स्टोरी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें ऐसी प्रोडक्ट जो है आपको नजर नहीं आएगी. अभी जो मैं लास्ट नंबर देख रहा था रोशन डिजिटल अकाउंट के, अब तक का जो ग्रॉस इनफ्लो है वो अराउंड $12.7 बिलियन का है फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी इन पाकिस्तान. और इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें, जो ये इनिशिएटिव है उसमें जो जनरली चैलेंज आता था ओवरसीज पाकिस्तानियों को या हमारी कम्युनिटी को, वो ये आता था कि उनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड थी इन टर्म्स ऑफ बैंक अकाउंट ओपनिंग. बट यहाँ पे आरडीए के थ्रू यू कैन ओपन योर अकाउंट ऑन क्लिक, प्लस आपको अगर पैसे वापस भी लेके जाने हैं तो उसी अकाउंट में आप वापस भी ले आ सकते हो. ये बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है, और इसी वजह से अगर आप देखें इसके इनफ्लोज भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें अराउंड $1.86 बिलियन के इनफ्लोज आए हैं, विच इज अराउंड 200 मिलियन, 200 to 250 मिलियन डॉलर्स पर मंथ के हिसाब से. तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन इस तरह की है, नीड भी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनिशिएटिव लिया गया है. बल्कि इनफैक्ट अभी कुछ और इसमें एडिशन, वैल्यू एडिशन क्रिएट की गई है आरडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वो अराउंड RDA 2 का चल रहा है. तो ये तो एक बैकग्राउंड था. इसमें अगर हम देखें जो रिक्वायरमेंट है आरडी अकाउंट की, जो ऑलरेडी पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, वो जो है अपने सीएनआईसी के थ्रू या पीएनआईसी के थ्रू जो है वो अकाउंट को जो है वो ओपन कर सकते हैं. इसके अलावा जो है अभी जो रिसेंटली जो एक और जो वैल्यू एडिशन क्रिएट की है स्टेट बैंक ने, उसमें ये कि जो फॉरेन एंटिटीज हैं या फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपने अकाउंट को जो आरडीए के थ्रू ओपन कर सकते हैं, विच इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, कि वो पाकिस्तानी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिटर्न्स हैं, उसको जो है वो कैश कर सकते हैं उस थ्रू द आरडीए अकाउंट. आगे अगर हम देखें इसमें इन टर्म्स ऑफ आरडीए, जो अकाउंट ओपनिंग का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है. इसमें आप हमारी अलमीदान की जो ऐप है उसके थ्रू भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. उसमें टैप अवेलेबल है रोशन डिजिटल अकाउंट का, और उस अलमीदान की जो वेबसाइट है वहां से भी जो है आप जो है अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं. प्लस ये जो लिंक्स हैं ये अवेलेबल है मीदान बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी. जी आगे इसमें अगर देखें जो अलमीज़ान की इन्वेस्टमेंट ऐप की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे आप जो है मार्केट वॉच भी अवेलेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अवेलेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, मार्केट कैसी चल रही है, स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या अवेलेबिलिटी है या क्या मार्केट के ट्रेंड्स हैं, वो आप अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू भी जो है इसको मैनेज कर सकते हैं. अच्छा, इसका तरीका क्या है? बड़ा ही सिंपल तरीका है इसका. इसमें आप अलमीदान की वेबसाइट पे जाएं और जाके वहां पे जो है क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इसमें जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जब भी आप अलमीदान के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उसमें आपको पहले बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. उस बैंक अकाउंट की ओपनिंग के बाद जो है थ्रू मीदान बैंक अकाउंट, आरडीए अकाउंट, यू कैन इन्वेस्ट इन द अलमीदान म्यूचुअल फंड ऑल्सो. अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट है जैसे आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, सीएनआईसी है या पासपोर्ट है, प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंस चाहिए होगा, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी चाहिए होगी, और उसके बाद जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का जो है आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट को जो है स्टार्ट कर सकते हैं. ये सफी देखेंगे, स्लाइड शायद नहीं आ रही है इस पे. जी जी.
तो जैसे मैंने बताया कि 2-3 तरीके हैं इसमें। अलमीदान की ऐप के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलमीदान बैंक की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। हमारी जो अलमीदान इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट है वहां पे भी जाके आप क्लिक के थ्रू जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो ऑन कर सकते हैं थ्रू आरडीए। जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं इसमें अलमीदान बैंक की वेबसाइट भी आ रही है, टेलीफोन नंबर्स भी आ रहे हैं, अलमीदान इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट भी आ रही है। प्लस यू कैन जस्ट send us an email and we will update you with all your requirements. So this is all about the RDA things. ऑलरेडी इम्तियाज साहब ने जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज है वो कवर कर ली थी। आरडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने इधर शेयर कर ली हैं। अब इन दी एंड हम जो है Q&A सेशन को जो है वो ले लेते हैं, और आप लोग के सवालात हो तो प्लीज राइट ऑन द चैट, सो वी विल आंसर योर क्वेरीज अकॉर्डिंगली। आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ी चीज, जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट तला वाज सेइंग, जो आरडीए में जो अब एक इन्होंने इनोवेशन ये की है कि पहले तो ये सिर्फ एनआरपीस के लिए था, अब जी जी इन्होंने इसको ओपन कर दिया है टू द कॉर्पोरेट्स। आई थिंक तला आल्सो डिस्कस दिस कि कॉर्पोरेट्स के लिए भी ओपन कर दिया है, और जो है वो नॉन, जिनका पाकिस्तान सिटीजनशिप नहीं है वो भी कर सकते हैं। सो अगेन इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर even the companies that you work for, if they are interested in evaluating Pakistan as an investment destination, तो उसको इन्होंने आरडीए के अंदर चैनल कर दिया। तो दैट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू गेन एक्सपोजर टू द पाकिस्तान मार्केट। जी, थैंक यू इम्तियाज साहब। अब हम Q&A का सेशन कर लेते हैं। सज्जाद लतीफ साहब का सवाल है, हाउ टू ओपन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड का अकाउंट, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी लास्ट आपको बताया कि इसमें आप अलमीदान की वेबसाइट पे भी जाके जो है आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अलमीदान की ऐप के थ्रू भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड इट्स ऑल डिजिटल। इसमें जब आप आरडीए के लिए अकाउंट ओपन करेंगे तो पहले आपको मीज़ान बैंक का एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, या अगर ऑलरेडी आपका मीज़ान का आरडीए बैंक अकाउंट है देन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द अलमीदान म्यूचुअल फंड। फिर शहजाद सलीम साहब का सवाल है, वी कैन हैव मल्टीपल आरडी अकाउंट, आई हैव ऑलरेडी आरडी अकाउंट विद अस्करी, कैन हैव अनदर अकाउंट विद मीरान। जी बिल्कुल, आप जो है डिफरेंट आपकी बैंक्स के साथ अगर रिलेशनशिप्स हैं तो आप डिफरेंट बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं थ्रू आरडीए, और इसमें जो है कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। साकिब साहब का सवाल है, मोहम्मद साकिब साहब का, व्हाट वुड बी द एडवाइस फॉर दोस ओवरसीज पाकिस्तानी हु कैन पुट असाइड 30,000 रुपीज, 30 to 50,000 रुपीज पर मंथ। जी इम्तियाज साहब, इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जो है अपनी थॉट्स शेयर करें। दो तीन चीजें, वन ऑब्वियसली वी वांट टू रियली अंडरस्टैंड कि 30 to 50,000 तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज द टाइम होराइजन एंड व्हाट इज द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट that can come in. If this is money that you might want to withdraw at a short notice for certain expenses, या एक कॉम्बिनेशन है, तो या तो हम एक कॉम्बिनेशन बना देंगे कि आपकी नियर टर्म लिक्विडिटी नीड्स के लिए मनी मार्केट फंड्स में वो पैसे पार्क कर दें और बाकी इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर दे दें। If this is money that you do not need for the foreseeable future, then probably two options can be looked at कि एक इक्विटी सेंट्रिक आपके लिए पोर्टफोलियो बनाया जाए, जैसे मैंने बात की कि शायद वीपीएस भी बेहतर होगा इफ इट्स अ लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन, दैट यस द अमाउंट इज 30 to 50,000 बट यू कैन कीप इन्वेस्टिंग एवरी मंथ and you don't need it for 5-10 years, then probably I would say कि इसको equity and potentially VPS को consider करें। जी वैसे साकिब भाई, इसमें अप्रोच बिल्कुल सही है, बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं 30 to 50,000 रुपीज पर मंथ की, जनरली हम एडवाइस भी यही कर रहे होते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि वो रेगुलर जो है इन्वेस्ट करें। इसमें बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं कि जिसके अंदर मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें फिर अगर आप स्पेशली जैसे इम्तियाज साहब ने जिक्र किया लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट का, अगर आप स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कभी आपको मार्केट का हाई मिल रहा होता है, कभी आपको लो मिल रहा होता है, बट इन दी एंड इफ यू सी योर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 year 10 years, तो आपका जो एवरेज जो रिटर्न है वो एज कम्पेयर टू एनी अदर क्लास जो है वो काफी फिनोमिनल होता है। तो दिस इज द बेस्ट वे कि हर एक को जो है अपनी मंथली जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है अपनी वेल्थ को जो है वो क्रिएट करना चाहिए। इसमें तरह एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो एक तरीका होता है ना, एब्सोल्यूट अमाउंट पे अगर आप अपना डिसिप्लिन कर देंगे 30,000 या 50,000 में पर मंथ इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जी आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है, ताकि आपका इस पे बायस नहीं आता। जब मार्केट एग्जैक्टली किसी वजह से बहुत हॉट हुई हुई है, बहुत हाई हुई हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली कम यूनिट्स मिलते हैं। मार्केट जब किसी वजह से नीचे आई हुई है या वो डिस्प्लेस हुई हुई है वैल्यूएशन, तो आपकी एंट्री पॉइंट जो है वो अच्छे नंबर पे हो जाती है। जो यहाँ पर लिटमस टेस्ट होता है वही वही वाला है कि बंदा फिर इस डिसिप्लिन पे रहे, क्योंकि होता ही है कि जब मार्केट बहुत बढ़ रही होती है तो बंदा कहता है इस बार 50,000 की जगह 80,000 डाल देता हूँ, तो फिर वो रॉन्ग डिसीजन हो जाता है कभी कभार। या फिर ये होता है जब मार्केट नीचे आ रही है इसमें नहीं 30,000 नहीं इन्वेस्ट करता। तो यहाँ पर जो लिटमस टेस्ट है वो है डिसिप्लिन, एंड इफ यू डूइंग इट विद डिसिप्लिन फॉर द लॉन्गर टर्म, आई थिंक दिस इज दी बेस्ट स्ट्रेटेजी। मतलब पूरी इंडिया की म्यूचुअल फंड मार्केट एसआईपी पे इसी तरह से वो हुई हुई है कि वो एक मंथली अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड देन दे लेट मार्केट डू द मैजिक रादर देन ट्राइंग टू डू द मैजिक देमसेल्व्स।
एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में इम्तियाज साहब, जो हम कहते हैं एक बात के कंपाउंडिंग इज द सेवेंथ वंडर ऑफ वर्ल्ड, तो जो कंपाउंडिंग का सही इफेक्ट जो है आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही मिल रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद सवाल है फ्रॉम शेरोन सेड्रिक का, विल इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड रिलीव us फ्रॉम टैक्स? देखिए, जैसे इसमें एक पॉइंट तो बड़ा अच्छा है, इम्तियाज साहब ने हाईलाइट किया था रिगार्डिंग द पेंशन फंड के। पेंशन फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली मीजान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड में, तो आपको ईयरली जो टैक्स लगता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड में, वो तो आपको नहीं लग रहा होता। जो भी आपका रिटर्न है वो टैक्स फ्री चल रहा होता है। इसमें अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसमें एक और हमारी एडवाइस होती है अपने इन्वेस्टर्स को, कि आप चाहे ओवरसीज में जॉब कर रहे हो और आप जो है अब्रॉड हो, लेकिन आप पाकिस्तान में एटलीस्ट अपना जो टैक्स रिटर्न है वो जरूर फाइल करें, आइदर फॉर जीरो ऑल्सो। जीरो का भी अगर टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, बिकॉज वेन एवर यू रिडीम फ्रॉम द पेंशन फंड, तो उस वक्त आपकी लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज टैक्स रेट देखा जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ईयर्स का एक प्लान बनाया और आज आपकी एज 50 है, तो आप हर साल हर मंथ पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते रहें। जो भी रिटर्न है आपका वो टैक्स फ्री आपका जो है वो ग्रो हो रहा होगा। इन द एंड, फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 60 आप वैसे ही आ जाते हैं हमारे पास जो है पैसे लेने के लिए, तो उसका 50% तो टैक्स फ्री आपको मिल ही जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग 50% है, और वो भी अगर आपका टैक्स रिटर्न जीरो के ऊपर है लास्ट 3 ईयर्स का, तो वो भी आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा। तो इस तरह की जो है इन्वेस्टमेंट्स को जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू पेंशन फंड। शहजाद सलीम साहब कहते हैं, वी आर ऑल्सो वेरी कंसर्न विद द कस्टमर सर्विसेज। अच्छा, वी आर ऑल्सो, इन्होंने जनरल एक बात की है शहजाद साहब ने, वी आर ऑल्सो वेरी कंसर्न विद कस्टमर सर्विस विच इज ओवरऑल लैकिंग वाइल डीलिंग विद ओवरसीज कस्टमर्स। अच्छा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अलमीज़ान या मीज़ान बैंक की बात करें, तो कस्टमर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, हर एक के लिए हमने डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स भी रखे हुए हैं। प्लस जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है के थ्रू भी हम सर्व कर रहे हैं, इसमें हमारे चैट बॉट भी अवेलेबल हैं, मीज़ान की वेबसाइट पे भी हैं, अलमीज़ान पे भी जो है आपको, अगर आप चैट पे जाके आप कोई सवाल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज हमारा जो एक ईमेल एड्रेस है info@almizangroup.com, वहां पे आपकी कोई क्वेरी हो तो वहां पे भी आप जो है क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, फिर साकिब साहब का फिर अगेन सवाल। जस्ट टू ऐड करना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बट जी जी। शहजाद सलीम साहब, अगर कोई आपका स्पेसिफिक कोई ऐसा वो हो, तो यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू अस, कि कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो where you've not been given the right response from our side, to please do highlight it to us. Obviously we put in a lot of emphasis on the customer service side, तो अगर कहीं slippages हो रहे हैं या कोई slippage आपके साथ हो, तो please do highlight to us, and we would make sure that we correct that gap that you have experienced. फिर साकिब भाई का सवाल है, साकिब भाई के कमेंट है, बेसिकली स्मॉल सेविंग फॉर सैलरी क्लास दैट कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल नंबर्स। ये हमने बात कर ली ऑलरेडी। फिर मसरूर सिद्दीकी साहब का सवाल है, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ आरडी अकाउंट होल्डर पोस्ट बिकमिंग रेजिडेंट इन पाकिस्तान? Say if I have invested for 5 years and you become resident and resident, say after 3 years, what will be the status of RDA? देखिए, आरडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं सवाल समझा हूँ आपका, आरडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब आपका आरडीए अकाउंट, चाहे आप 5 साल के लिए हो चाहे 3 साल के लिए, जब आपने एक बार आरडीए अकाउंट ओपन कर लिया, तो वो आपका आरडीए अकाउंट है। आरडीए अकाउंट के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसी आरडीए अकाउंट की जो अमाउंट है आपको, आप उसको रिपेट्रिएट कर सकते हैं। जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट अगर पाकिस्तान में है, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट है, बट इस आरडीए अकाउंट को जो है आप ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप 3 साल के लिए चाहे 5 साल के लिए, आप अपना आरडीए अकाउंट को उसी तरह यूज कर सकते हैं जिस तरह आप पहले आप कर रहे थे। अच्छा, इस फिर शहजाद खान साहब का सवाल है, व्हाट आर द रीट्स ऑप्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान? करंटली जी कुछ कंपनीज जो है इसमें ऑफर कर रही हैं रीट्स, और कुछ बहुत इन प्रोसेस भी हैं, डेवलपमेंट स्टेज के अंदर भी हैं। तो इसमें जब हमारे पास कोई कंप्लीट कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, न्यू लॉन्चेस आती हैं, तो वो ऑब्वियसली, जैसे इम्तियाज साहब ने जिक्र किया कि हमारे पास भी रीट का लाइसेंस है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अलमीदान भी इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा और डेवलप करेगा, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, फिर है वी कैन टेक, जोदत का सवाल है, जोदत अली का, वी कैन टेक बैक फंड फ्रॉम आरडीए हेयर इन लोकल बैंक ऑफ कुवैत, प्लीज क्लैरिफाई। यस, एग्जैक्टली। अगर आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने बैंक में ट्रांसफर किया आरडीए अकाउंट में फ्रॉम कुवैत बैंक, तो उसी बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे को वापस ले आ सकते हो। यही एग्जैक्टली अगर आप देखें ब्यूटी भी है आरडीए अकाउंट की, क्योंकि चैलेंज यही आता था कि जब आपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जब पाकिस्तान से आप वापस ले आते थे, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको आरडीए के थ्रू स्टेट बैंक ने जो है वो सॉल्व किया है।
फिर शहजाद खान साहब का सवाल है, इज रीट बेटर देन म्यूचुअल फंड? इसमें बड़ा सिंपल आंसर है शहजाद साहब मेरा। देखें, कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपकी जब भी इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं तो इसमें जरूरी है कि आपकी डिफरेंट एसेट क्लासेस होनी चाहिए। जैसे इक्विटी में एक आपका पोर्शन होना चाहिए, फिक्स इनकम साइड पे भी होना चाहिए, आपका गोल्ड में भी होना चाहिए, रीट में भी होना चाहिए। तो एक पूरी एसेट क्लासेस जो है अपने रिस्क एपेटाइट या अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका जो है हर जगह जो है हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर कोई ना कोई शेयर होना चाहिए। अच्छा, फिर एहसन अशरफ भाई का सवाल है, आर ईटीएफ बेटर देन हाई रिस्क म्यूचुअल फंड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन? इसमें मैं इम्तियाज साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपडेट करें इसके ऊपर। इसमें देखिए, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड जनरली इज इक्विटीज और ईटीएफ भी जो है, अगर हम इक्विटी ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो अंडरलाइंग एसेट तो सेम है। अब इसमें जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो ये है कि ईटीएफ इज ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, आपको जाके ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना हो, मार्केट से अपना ईटीएफ ले लेते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको एएमसी से, जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड, आपको एएमसी से बाई करना होता है। एक ही से फर्क आता है क्योंकि अंडरलाइंग एसेट क्लास सेम है। ईटीएफ में जो इंडेक्स है वो कंसिस्टेंट रहता है, उसके अंदर एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होती। वो एक पैसिव इंडेक्स होता है जो 6 महीने में या 1 महीने में, डिपेंडिंग के क्या उसका मैंडेट है, वो एक बार रीबैलेंस होता है। तो वो आपको थोड़ा सा पैसिव एक्सपोजर देता है, आपको सेकेंडरी मार्केट से लेना होता है। एक और लिमिटेशन ईटीएफ में जो आती है वो ये है कि अगर उसका कोई भी अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे है तो फिर ईटीएफ ट्रेड होना बंद हो जाता है फॉर द डे, क्योंकि मार्केट मेकर जो है फिर मार्केट मेक नहीं कर पाता। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में आपको एक्टिव मैनेजमेंट मिल रही होती है, आपको एसेट मैनेजर से आके वो यूनिट्स खरीदने होते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अगर मैं कोर की बात करूं तो अंडरलाइंग एसेट क्लास इज द सेम। इन हाई रिस्क म्यूचुअल फंड यू आर गेटिंग इक्विटी एक्सपोजर, इन मोस्ट ऑफ द ईटीएफ यू आल्सो गेटिंग इक्विटी एक्सपोजर। तो शायद उस तरह का रिटर्न और कैपिटल अप्रिसिएशन का फर्क नहीं है, टेक्निकलिटीज का ज्यादा फर्क है दोनों में। अच्छा जी, थैंक यू। जैसा वकार साहब का सवाल सवाल है, व्हाट आर द की assumptions behind your USD PKR forecast of 280 for FY 2026 given reliance on geopolitical stability, IMF support and political condition? How do you factor in risk from the external shocks such as oil prices and regional instability in this exchange rate? तो इस पे इम्तियाज साहब ने वैसे कवरेज तो आपने की थी सारी ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ आप ऐड करना चाहें इसमें? तो इफ यू लुक एट द करंट नंबर्स तो अभी इसके आसपास ही है, सिटिंग इन द मिडल ऑफ मे। अगेन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सिचुएशन तो थोड़ी सी फ्लूइड है, बट इसी सारी चीजों के देखते हुए कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आईएमएफ सपोर्ट, पॉलिटिकल कंडीशंस, इन सारों के बावजूद भी वी हैव बीन एबल टू मेंटेन द करेंसी एट दीज लेवल्स। सो वी सी के इन द नियर टर्म जो है वो करेंसी शुड बी स्टेबल। हैविंग सेड दैट, वही जो मैंने बात की थी डिस्क्लेमर वाली, कि वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, अ शॉक हियर और अ शॉक देयर कुड मूव दिस, इधर वेज मूव हो सकती है। अगर हमारे लिए कोई ये सारा जो हमने मीडिएटर का रोल प्ले किया है, ये सारी चीजें की है, इसमें अगर कोई इन्फ्लोज आ जाते हैं तो यू कुड सी द करेंसी इवन स्ट्रेंथनिंग फर्दर फ्रॉम हाउ इट हैज परफॉर्म फ्रॉम हियर। क्योंकि अगेन द पर्सन हुज आस्क्ड द क्वेश्चन, ऑब्वियसली आपसे, क्योंकि आई वुड अज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट्स वर्क। तो इसी पे अगर आप एक और वेरिएबल देखें, जो स्टेट बैंक की बाइंग है फ्रॉम दी ओपन मार्केट, दे हैव बीन मॉपिंग अप डॉलर्स फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स रनिंग। सो जो एक सप्लाई ऑफ डॉलर्स है वो तो अभी भी नजर आ रही है कि है मार्केट के अंदर। जहां पर ये ट्रेंड रिवर्स होगा वहां से आई थिंक शायद ज्यादा बड़ा कंसर्न शुरू होगा कि या तो स्टेट बैंक बाइंग बंद कर दे या उसको मार्केट में डॉलर सप्लाई करने पड़े स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी होती हुई हमें नजर नहीं आई है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट द करेंसी विल मूव वन वे और द अदर। हैविंग सेड दैट, रिस्क को हम इस वक्त बिल्कुल डाउन प्ले नहीं कर रहे। वी आर इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, things can change overnight, but this is an analysis based on how things stand right now and how we are reading the current situation. फिर सवाल है, फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बिटवीन 2008 एंड 2018 व्हाट इज द नेट इन्वेस्टेड रिटर्न आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एफएक्स डेप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट? कैन यू क्वांटिफाई द ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज लॉस गेन एक्सपीरियंस बाय इन्वेस्टर ओवर दिस पीरियड? कैन यू स्टिल से आई विल बी स्टे प्रॉफिटेबल? इस पे इम्तियाज साहब कुछ ऐड करना करेंगे आप? Again, I think ये बहुत स्पेसिफिक डेट से तो कैलकुलेट करना हाँ, पड़ेगा। एज ए सेट कि वो व्हेन यू लुक एट, ऑब्वियसली इफ यू पिक स्पेसिफिक डेट्स एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट द नंबर विल बी, बट अगर मैं ऑन द टॉप ऑफ माय हेड इफ आई रिमेंबर, द मार्केट वाज 10,000 इंडेक्स इन 2008। इन 2018 आई थिंक इट वेंट टू, इन 17 इट वेंट टू 53 और फिर 40 वगैरह पे बॉटम हुई थी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। अब दो बार वो नीचे भी आई थी एट 24,000। तो आई डोंट नो, वो डिपेंड करेगा एग्जैक्ट डेट्स आप क्या लेते हैं। बट बिटवीन 2008 एंड 2018 आई थिंक मार्केट का पीकेआर टर्म्स में तो 4 टाइम्स का इंक्रीज था। अभी मुझे डीवैल का नंबर याद नहीं है, बट वी कैन टेक दिस अप ऑफलाइन। एंड आई एम श्योर जो मैंने ये बातें की थी डिफरेंट टाइम पीरियड्स की, आई एम श्योर उसमें ऐसे टाइम पीरियड्स भी होंगे जिसपे नेगेटिव होगा। मैं फेब्रुअरी या जनवरी मिड से ले लूंगा तो आप कहेंगे रीसेंट रिटर्न्स भी नेगेटिव है इन पीकेआर टर्म्स। सो दोज अप्स एंड डाउन्स हैपन, व्हिच इज व्हाई वी से कि इक्विटीज पे आपको एक लॉन्गर टर्म व्यू लेना होता है।
अगेन ऐसे केसेस जरूर होंगे कि एक लॉन्गर टर्म बुल रन में भी पीपल हैव लॉस्ट मनी. 40,000 से मार्केट 190,000 हो गई, इस पे भी आपको ऐसे केसेस मिलेंगे इफ यू पिक सर्टेन डेट्स कि जहां पर हो सकता है नेगेटिव रहा हो रिटर्न. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेस द केस रिलेटेड ऑन इंडिविजुअल डेट्स. बट आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसको हम ऑफलाइन टेकअप कर सकते हैं. अगर इस स्पेसिफिक टाइम विंडो को पिक करें तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था रिटर्न. अच्छा, अजीजुल हक साहब का सवाल है, ऑलरेडी हैव आरडीए म्यूचुअल फंड अकाउंट, नाउ हाउ कैन आई कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड एज वेल, आई ट्राइड बट नो ऑप्शन अवेलेबल इन द पोर्टल एंड मोबाइल ऐप. अच्छा अजीज साहब, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अवेलेबिलिटी का चैलेंज आता है, तो इस वजह से इसको हमने ओपन नहीं रखा हुआ, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर हम अकॉर्डिंगली फिर इसकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो. तो इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर लें, तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे कनेक्ट करके फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड फंड में भी स्टार्ट करवाएंगे. बिलाल अहमद साहब फॉर बिलाल अहमद साहब का सवाल है, फ्रॉम मेनी मंथ वी फेसिंग प्रॉब्लम इन ट्रांसफर फंड्स इन रोशन अकाउंट इन मीदान बैंक, नाउ वी थिंकिंग टू चेंज फ्रॉम मीदान बैंक एज पर करेंसी एक्सचेंज, द मीदान बैंक मेकिंग प्रॉब्लम फॉर रोशन अकाउंट होल्डर. अच्छा, इसमें ये मेरे ख्याल में स्पेसिफिक केस होगा बिलाल साहब आपका, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया इस वक्त जो भी $14 बिलियन का इनफ्लो हुआ है आरडीए के अंदर, इसमें मेजर इनफ्लो जो है वो मीदान बैंक के थ्रू हुआ है. और जो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, जो अकाउंट ओपन हुए हैं अराउंड 900,000 प्लस इन्वेस्टर्स के अकाउंट हुए हैं आरडीए के अंदर. तो ये आपका जो स्पेसिफिक केस है, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना नंबर और ईमेल एड्रेस क्वेरीज के साथ शेयर कर लें. इसमें info@almidan ग्रुप पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, इसको फिर हम उसी हिसाब से आपको फैसिलिटेट भी कर देंगे. अच्छा, फिर आपका ही सवाल है जी साहब, एज यू मेंशन बाय यू आरडीए होल्डर दैट हैज अ डेडिकेटेड आरएम, हाउ आई कैन नो द हु इज दैट पर्सन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल. सेम मेरा आपको रिप्लाई है कि प्लीज आप अपनी डिटेल शेयर कर दें, तो मैं फिर आपसे जो है इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करके मीदान बैंक के थ्रू फिर हम आपको इस पर अपडेट करेंगे. अच्छा, फिर इस पे एक सवाल है बिलाल साहब का, एज पर करेंसी एक्सचेंज कंपनी द बैंक वांट टू क्लोज रोशन अकाउंट, मे बी दैट्स व्हाई मेकिंग प्रॉब्लम मेनी टाइम विद मी एंड माय friends, like we did 4 transactions and sometime they credit 2 and 4 other बैंक टेक 1 वीक. अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में, ये आपको मिसगाइड किया गया है एक्सचेंज कंपनी के थ्रू, बिकॉज मैंने तो आपको बताया कि इस वक्त तो आरडीए 2 की जो है कैंपेन चल रही है थ्रू स्टेट बैंक, और जो इनफ्लोज हैं 200 to $250 million के जो है कंटिन्यूसली जो है इनफ्लोज आ रहे हैं बैंक्स के अंदर. तो ये ऐसा पॉसिबल है नहीं कि हो, लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आई होगी आपको, तो आप चाहे मीज़ान बैंक है तो आप हमें भी भेज सकते हैं अपनी क्वेरी, अगर कोई और बैंक है तो उसके कस्टमर सर्विस के साथ जो है आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं. जब फिर बिलाल साहब के सवाल है, रोशन होल्डर्स हाउ के विदड्रॉ फंड्स वंस वी विजिट पाकिस्तान, even locally when we try to transfer fund from local bank to Midan, but Roshan local bank to Midan, but Roshan to not allowed. Exactly जी, this is the policy of the Roshan digital account होल्डर, कि आप अगर रोशन डिजिटल अकाउंट का आपका बैंक अकाउंट है और आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, तो आपकी जो अमाउंट ट्रांसफर या अगर आप पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो उसी बैंक अकाउंट में जाएगा. फ्रॉम रोशन डिजिटल अकाउंट टू लोकल बैंक अकाउंट ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं है. ये सिर्फ जो है फैसिलिटी जो है वो दी गई है ओवरसीज पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बिलाल साहब, ये तो था आपका सवाल, अजीज साहब ने अपना शेयर कर लिया है. तो मेरे ख्याल में हमने एहसन भाई एंड इम्तियाज साहब ऑलमोस्ट सारे जो क्वेरीज थी या क्वेश्चन थे वो हमने ले लिए हैं, जवाब भी देने की कोशिश की है, रिप्लाई भी करने का हमने ट्राई की है. और इसमें जो अगर कोई अनआंसर्ड सवाल रह भी गए हैं, इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है विद रेफरेंस टू हमारा वेबिनार, यू कैन सेंड योर ईमेल एट info@almizangroup.com, और इधर भी आप चैट बॉक्स में अपनी डिटेल जो है शेयर कर सकते हैं, फिर हम आपको आपकी क्वेरीज के हिसाब से इंशाल्लाह इस पे जो है हम आपको रिप्लाई करेंगे. इन दी एंड इफ यू वांटेड टू ऐड एनीथिंग एहसन भाई, तो प्लीज आप ऐड कर दें, फिर मैं इम्तियाज साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स लेके इस सेशन को हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं. जी, थैंक यू वेरी मच तलहा भाई, इम्तियाज भाई, दैट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. और आई बिलीव दैट आवर ओवरसीज कम्युनिटी विल बेनिफिट फ्रॉम इट. कुछ चीज़ें जो कि ये इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन जिसका नॉर्मली हमें एक्सेस नहीं होता और अवेलेबल भी नहीं होती, तो यू गाइस हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस एंड प्रोवाइड टू अस.
तो डेफिनेटली ये हमारी बहुत जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारे नॉलेज में इसने इजाफा किया है। अब इसमें जो है वो जैसे जो मेन पर्पस हमारा जो था वो यही था कि इसकी अवेयरनेस जो है जो कैपिटल मार्केट और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है, रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, इसकी अवेयरनेस हम अपने ओवरसीज कम्युनिटी को जो है वो प्रोवाइड करें। तो दैट्स वेरी वेल डन इन दिस प्रेजेंटेशन। तो Talha bhai, if you can kindly unmute Saqib bhai, because Saqib bhai is we have here for जो कि हमारे कैपिटल मार्केट के स्पेशलाइज्ड हैं। तो अगर वो अपने रिमार्क्स ऐड करना चाहें तो आप काइंडली कैन यू अनम्यूट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स टू हिम। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने हसन भाई। द मैन बिहाइंड द गन कहते हैं ना, तो मैन बिहाइंड द वेबिनार है साकिब भाई जो जिन्होंने ये सारा सिलसिला जो है वो इनिशिएट किया है। तो आपसे सभी रिक्वेस्ट है कि प्लीज साकिब साहब को जो है अनम्यूट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलरेडी अनम्यूटेड मी। थैंक यू हसन भाई। इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच। लवली टू हेयर ऑल दिस, क्योंकि डेटा आपके पास है सर, डेटा हमारे पास नहीं था। एंड आई थिंक दिस वाज द की पार्ट जिस तरह आपने प्रेजेंट किया। देखिए दोस्तों से जो इस वेबिनार में आए हैं, अगेन द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज, इन्वेस्टमेंट को हमेशा सेविंग की तरह लें, छोटी छोटी करें और स्प्रेड इट आउट अक्रॉस डिफरेंट। मैंने भी मिजान से अपने फंड्स का जो आगाज़ किया, बहुत छोटे छोटे पैसों में डिफरेंट फंड्स में डाला। वी हेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। होता यही है कि जब आप इसका रिटर्न खुद देखते हैं, दैट्स वे यू डिसाइड कि मैं इसके बाद किस में ज़्यादा करूं। मैंने जस्ट टू हाईलाइट टू आवर मेंबर्स, मैंने ऐसे थोड़े से पैसे छोड़े हुए थे एक्विटी फंड में, आपके एमएमएफ में। दे ऑलमोस्ट डबल्ड इन लास्ट 1 ईयर। तो आई डेंट नो, मैं ऐसे ही जाके एक दिन पोर्टफोलियो देखा, छोटा सा अमाउंट था इसलिए यू डोंट नॉर्मली सी, तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। तो एक्विटी प्ले, जो यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ, प्लीज गो इनटू एक्विटी प्ले। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द वे द थिंग्स आर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन, सिक्लिकल रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म में यू विल बेनिफिट। और आई थिंक पेंशन फंड स्टिल इज अ वेरी गुड ऑप्शन कंपाउंडिंग से। वो जो मेरा सवाल था 20-30 हज़ार, पुट असाइड, केडी में बात करूंगा 20-25-30 दिनार हर महीने किसी ना किसी फंड में आप प्लेस करते रहें। ग्रेजुअली यू विल डेफिनेटली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। बस यही छोटा सा मैसेज था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट इम्तियाज साहब फॉर सच अ शॉर्ट नोटिस। आप सब ने माशाल्लाह तैयारी की हमेशा की तरह, एंड वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, एंड वन डे इंशाल्लाह विल हैव यू इन कुवैत इंशाल्लाह। थैंक यू साकिब साहब। जी इम्तियाज साहब, ओवर टू यू। So thank you so much, Hasan bhai, Saqib bhai. I think it's a wonderful partnership that we have going between Al Mizan and your team, and let's make this more regular. Inshallah, बिल्कुल किसी दिन हम कुवैत में भी ये जो है वो in person भी डिस्कशन कर लेंगे. Again, as Tala said, we've tried to answer the questions, but I'm sure कि कुछ लोगों के और specific questions होंगे, so just feel free to reach out to us. We'd be more than happy to answer them. एक question शायद रह गया था, थोड़ा सा उसको बड़ा briefly मैं टच कर लूं। ताहिर साहब का एक क्वेश्चन था जहां उन्होंने सारे हमारे मैक्रो चैलेंजेस हाईलाइट किए थे, और आखिरी सवाल ये पूछा था कि वेदर स्टिल पाकिस्तान इक्विटीज विल बी गुड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली, कि हम कहीं पे भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान बहुत कोई परफेक्ट स्टेट में है, बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एसेट क्लासेस, यू जस्ट हैव टू सी कि वेदर इट कैन इंप्रूव फ्रॉम इट्स करंट स्टेट एंड व्हाट प्राइस एम आई गेटिंग इट एट। तो एक स्लाइड हमने जिस तरह वैल्यूएशन वाली की थी, एंड आई एम श्योर एक्सपर्ट पाकिस्तानी में बहुत डिस्कशन होता है इंडिया पाकिस्तान का के और दूसरी मार्केट्स का। सो वो मार्केट्स आपको मिल भी 17-18 के मल्टीपल पे रही हैं, वेयर यू कैन आर्ग्यू के मे बी दे आर इन अ बेटर सिचुएशन। तो पाकिस्तान की ये सारी वीकनेसेस के साथ आपको 7.6 की मल्टीपल में मिल रही है। सो फ्रॉम एन एसेट रिटर्न पर्सपेक्टिव, द एसेट कैन स्टिल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म अदर मार्केट। सो व्हेन यू डूइंग एसेट इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन भी उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती है। तो इसी तरह आपको मार्केट्स को भी ऐसे ही देखना है। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हमने 200-250% रिटर्न पिछले 3 साल में दिया। जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए, ऑयल प्राइस वीकनेस, जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर, ये सारी चीजें तो पिछले 2 साल में भी थी। सो अगेन, जस्ट व्हेन वी आर लुकिंग एट एसेट इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाट वी वुड हाईलाइट कि लुक एट इट फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, स्पेशली विद अ वैल्यूएशन एंगल टू इट। सो मैंने कहा एक सवाल रह गया था तो उसका जवाब दे दूं, बट अगेन थैंक यू सो मच एहसन भाई, थैंक यू सो मच साकिब भाई फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। वी ऑलवेज लव टू हियर योर थॉट्स। हमें ही पता चलता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या सोच रहे हैं एंड व्हाट आर द पेन पॉइंट्स दैट वी कैन एड्रेस। सो वी विल कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। I'll repeat, one of our audience had a problem with the customer service में कोई उनका वो था, तो please do let us know what has been that unsavory experience, and we'll definitely look to address that. So that's it from my side. Over to you, Tala. जी थैंक यू इम्तियाज साहब, थैंक यू साकिब भाई, एंड थैंक यू एहसन, एंड थैंक यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुवैत पाकिस्तानी कम्युनिटी इन द ऑडियंस
आप लोगों ने जो जिस तरह पार्टिसिपेट किया है, इंशाल्लाह जैसे ये एक वेबिनार हमने किया है, इसमें मैं ये आपको बताता चलूँ कि ओवरऑल जो है हमारी इट्स अ पार्ट ऑफ सीरीज के जिसमें हम ये वेबिनार्स की सीरीज है जिसमें हम जो है ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पाकिस्तान वो अवेयर करें पाकिस्तानी कम्युनिटी को। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आप लोगों के साथ हाजिर होंगे अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ पीबीएफ के की जो कम्युनिटी है उनके साथ, और दोबारा फिर हम आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर अपडेट करेंगे। सो इन द एंड थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह। टेक Thank you केयर जी। so much, Talha bhai. Thank you so much, Al-Mizan team. थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you for dialing in. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullah.